پیارے یسوع، تو عظیم چوپان اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تو نے خود ہی فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اے خداوند، تو نے ہماری خاطر اپنی زندگی اس وقت بھی دے دی جب گناہ کی وجہ سے ہم تیرے خلاف اور ناقابل تھے۔ آج ہم تیری عظمت، محبت، فیاضی اور لاسانی پیار سے متاثر ہو کر پشیمان مگر شکر گزار دل کے ساتھ تیرے دکھوں پر دھیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم تیرے دکھوں سے بھرپور ان واقعات کی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں جب تو نے ہمارے پیار کی خاطر صلیب اٹھائی اور آخرکار مصلوب ہوا۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں مقدسہ مریم کے ہمراہ اسی صلیبی اور دکھی راہ پر چلنے کی جرأت دے جس کی منزل کلوری ہے، تاکہ ہم تیرے ساتھ محبت اور وفا کا بندھن مضبوط کریں۔ عطا کر کے تیرے دکھوں میں ہماری یہ شراکت ہمیں ان انسانوں کے دکھوں میں شریک ہونا سکھائے جو مختلف قسم کی مصیبتوں اور تکالیف میں مبتلا اور زندگی کی صلیبوں تلے دبے ہوتے ہیں۔ آمین۔ زیتون کے باغ میں یسوع نے سہے جان کنی کے دکھ پاپی میرے واسطے، جان کنی کے دکھ پاپی میرے واسطے۔ مقام پہلا، یسوع پر موت کا فتویٰ دیا گیا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ خیال کرو کہ پلاطوس نے یسوع کو کوڑے لگوا کر اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھوا کر بے انصافی سے صلیب چلائے جانے کا حکم دیا۔ اے پیارے یسوع، صرف پلاطوس ہی نہیں بلکہ ہمارے گناہ تیری موت کا سبب ہوئے۔ ہم تیرے اس غمناک رستے کی خاطر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس دنیا کے سفر میں جس میں ہمارا دل گناہ کے سبب کمزور ہوتا جاتا ہے ہمیشہ ہماری مدد کر۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ سلام مریم، فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ جلال باپ بیٹے قدس کا ہو، ہم پر رحم کرے خداوند۔ زیتون کے باغ میں یسوع نے صلیب اٹھائی ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ خیال کرو کہ یسوع صلیب کے بوجھ کے تلے دبا ہوا چلتے چلتے ہماری بابت سوچتا تھا، اور اس موت کو جو ہمارے لیے سہنے کو تھا اپنے باپ کی نظر گزرانا۔ اے ہمارے بہت پیارے یسوع، جو صلیب تیرے کندھے پر رکھی گئی وہ ہمارا گناہ ہے۔ آج ہم تجھ کو صلیب کے نیچے دیکھ کر سچ مچ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی موت تک تیرے پیچھے اپنی توبہ کی صلیب اٹھا لے چلیں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ سلام مریم، فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔
مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں. موت سے دنیا کو واپسی بخشی. خیال کرو کہ یسوع دکھ و تکلیف سے ایسا کمزور ہو گیا کہ مشکل سے چل سکتا تھا اور صلیب کے بوجھ سے گر پڑا. اے ہمارے پیارے یسوع، ہمارے بڑے گناہوں کا بوجھ تیرے گرنے کا سبب ہوا. اسی کو گرنے کی خاطر ہم کو بڑے گناہوں میں گرنے سے بچا. آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہمیں قرض بخش دے، تو ہمارے قرض کو بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنے، بلکہ برائی سے بچا. آمین. اسلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، آپ کو دعا کرو، استغفار کر، آپ کو ہماری موت کے وقت. آمین. جلال باپ بیٹے روح القدس کا ہو، جیسے کہ قیامت تک ہم پر رحم کرے خداوند. زیتون کے باغ میں یسوع نے کہا، اے پدر میری نہیں پر تیری ہو رضا. اے پدر میری نہیں پر تیری ہو رضا. مقام چوتھا، یسوع کو اس کی غمزدہ ماں ملتی ہے. اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں. خیال کرو کہ یہاں ماں اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے. کیسی محبت سے یسوع نے اپنے مبارک ماں کی طرف دیکھا ہوگا اور کیسے افسوس اور ہمدردی سے مبارک مریم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا ہوگا. اے ہمارے بچانے والے یسوع، اگرچہ ہم روزمرہ گناہ کر کے تجھ کو ناراض کرتے ہیں، تو بھی تو اپنی مہربانی اور پیار سے ہماری طرف دیکھتا ہے. آج ہم کو یہ فضل عنایت کر کے ہم ہمیشہ اپنے گناہوں پر افسوس سے غور کیا کریں. آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہمیں قرض بخش دے، تو ہمارے قرض کو بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنے، بلکہ برائی سے بچا. آمین. اسلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہگار کے پاس سے دعا کر ہماری موت کے وقت. آمین. جلال باپ بیٹے روح القدس کا ہو، جیسا کہ خدا لکھا ہوا ہے ہمیشہ. ہم پر رحم کرے خداوند. ہم پر رحم کرے خداوند. زیتون کے باغ میں فرشتے آئے، پیارے بچی کو تسلی دینے کے لیے. پیارے بچی کو تسلی دینے کے لیے. مقام پانچواں، شمعون کرینی نے صلیب اٹھانے میں سہارا دیا. اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں. اس لیے کہ تم نے اپنی صلیبی موت سے دنیا کو واپسی بخشی. خیال کرو کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ یسوع کو صلیب اٹھا کر چلنے کی طاقت نہیں رہی، تو ایک شخص شمعون کرینی نام کو بیکار پکڑا تاکہ وہ یسوع کے پیچھے صلیب اٹھا کر چلے. اے پیارے یسوع، ہم صلیب سے بھاگ نہیں جاتے، بلکہ اس آدمی کی طرح اس کو اور اس فانی زندگی کی محنتوں اور مصیبتوں کو صبر سے اٹھائیں گے، اور خدا کی محبت کے لیے ان کو خوشی سے قبول کریں گے. آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہمیں قرض بخش دے، تو ہمارے قرض کو بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنے، بلکہ برائی سے بچا. آمین. اسلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہگار کے پاس سے دعا کر اور ہماری موت کے وقت. آمین. جلال باپ بیٹے روح القدس کا ہو، جیسے کہ خدا نے ہمیشہ. آمین. ہم پر رحم کرے خداوند. ہم پر رحم کرے خدا. زیتون کے
को पकड़ा दिया। मकाम छठा, एक नेक औरत ने यीशु का मुंह पहुंचा। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि नेक औरत ने यीशु को ऐसी गमज़दा हालत में और उसके मुंह से लहू और पसीना गिरते हुए देखकर एक रुमाल लिया और यीशु का मुंह पहुंचा, जिस पर यीशु के चेहरे की मुकद्दस तस्वीर उतर है। ऐ प्यारे यीशु, जिस वक्त बपतिस्मा के जरिए से हमारी तुझसे मोहब्बत हुई तो हमारा दिल उस वक्त कैसा ही खूबसूरत था, मगर तेरी मोहब्बत और मेहरबानी को नाचीज समझकर हमने अपना दिल गुनाहों में बेनूर और बदसूरत बनाया है। सिर्फ तू ही हमारे दिलों को पहली खूबसूरती अनायत कर सकता है। अपने दुखों की खातिर हमको बख्श। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका हम बख्श दे। हमारे भाइयों को बख्श और हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लाम में मरियम कुल फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, आपको दुआरा हुआ से दुआ कर, आप आए मौत की वक्त आमीन। जलाल बाप बेटे कुदस का हो, जैसे इब्तिदा में था हमेशा, हम पर रहम करे खुदा पर खुदावंद। ज़ैतून के बाग में यीशु ने पूछा, मकाम सातवां, यीशु दूसरी दफा गिर पड़ा। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। इसलिए अपने फिसली की मौत से दुनिया को मक़फ़रत बख्शी। ख्याल करो कि हमारा खुदावन दूसरी दफा गिर पड़ा और इससे उसके मुकद्दस सर और अज़ा के जख्मों का दुख ज़्यादा हो गया। ऐ रहीम यीशु, तुमने कितनी दफ़ा हमारे गुनाहों को बख्शा है, तो भी हमने फिर आजमाइशों में गिर कर और गुनाह करके तेरी बेइज्जती की है। तू रहम कर कि हमारी मदद कर कि रोज़मर्रा हम अपने गुनाहों से तौबा करें और तेरी मोहब्बत में मौत तक कायम रहें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इस्लाम में मरियम कुल फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप बेटे कुदस का हो, हम पर रहम करे खुदावंद। हम पर रहम करे खुदावंद। ज़ैतून के बाग में शागिर्द के चार, देख तो हर कान नौकर का उड़ा लिया, देख तो हर कान नौकर का उड़ा लिया। मकाम आठवां, यीशु औरतों से बात करता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि यीशु को इस रंजीदा हालत में देखकर राह में इसका लहू टपकता जाता है। हमदर्द औरतें इसके पीछे चल पड़ी। उसने उनको देखकर कहा, ऐ औरतों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। ऐ खुदावंद, हमारे गुनाह जो तेरे दुख और मौत का सबब हुए, हमें इन पर रोना वाजिब है। हम रोते हैं कि गुनाह करने से हमने तुझको जो बड़ा मेहरबान है नाराज़ किया है। हमें माफ़ी बख्श और अपनी मोहब्बत फिर हमको मनायत कर। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
दफा गिर पड़ा। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि यीशु कमजोरी के सबब गिर पड़ा और सिपाही बेरहमी से उसको चलाते और गिराते हैं। क्योंकि उसको इतनी ताकत ना थी, इसलिए वो तीसरी दफा गिर पड़ा। ऐ खुदावंद, इस कमजोरी की खातिर जो तुझको इस सफर में हुई, हमको मजबूती अनायत कर, ताकि हम दुनियावी खौफ और अपनी सब बुरी ख्वाहिशों पर फतह पाएं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। इस्लाम में मरियम फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप बेटे उसका मुंह हम पर रहम करे खुदा। ज़ैतून के बाग में चले आए सारे, छोड़ के प्यारे मुझी को दूर सब भागे, छोड़ के प्यारे मुझी को दूर सब भागे। मकाम 10वां, यीशु के कपड़े उतारे गए। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि कैसी बेरहमी से जलादों ने यीशु के कपड़े उतारे, और चूंकि उसके कपड़े जख्मों से चस्पा हो गए, इसलिए उनके साथ ही उसके पाक बदन का चमड़ा भी खींचा गया। ऐ हमारे बेगुनाह यीशु, इन दर्दों की खातिर जो तूने उस वक्त बर्दाश्त किए, हमको अपना फजल अनायत कर, ताकि हम इस दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत दूर करके और अपना दिल पाक रख कर सिर्फ तुझ ही को खुश करने की कोशिश करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिसका हम कर्ज़दार पहुँचे, हमारे कर्ज़ अदा और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लाम में मरियम फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि खुदा का बादशाह है, हम पर रहम करे खुदावंद। हम पर रहम करे खुदा। ज़ैतून के बाग में पूरा हुआ, अंबिया ने जो किताबें पाक में लिखा, अंबिया ने जो किताबें पाक में लिखा। मकाम 11वां, यीशु सलीब पर कीलों से चढ़ा गया। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि सिपाहियों ने यीशु को बेदर्दी से सलीब पर गिराया, और यीशु ने अपने हाथ सलीब पर पसरा कर अपनी जान की कुर्बानी अपने असली बाप को हमारी निजात के लिए चढ़ाई। तब सिपाहियों ने यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ के और सलीब को खड़ा करके बेइज्जती और रुसवाई में उसे मरने दिया। ऐ प्यारे यीशु, हमारे गुनाहों ने तुझको सलीब दी है, हम अपनी जिंदगी भर उनके लिए तौबा करते रहेंगे। आज तू रहम करके अपने पाक दिल की मोहब्बत हमारे दिलों में ऐसी डाल कि हम तुझको फिर कभी ना छोड़ें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिसका हमने कर्ज़दार को बख्शे, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लाम में मरियम फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू
काफर यीशु अहम का समय खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप बेटे रूह कुदस का हो जैसा कि खुदा का इंशाअल्लाह हम पर रहम करे खुदा हम पर रहम करे खुदा। ज़ैतून के बाग से यीशु तब चला, जान देने मेरे लिए तैयार हो गया, जान देने मेरे लिए तैयार हो गया। मकाम 12 यीशु सलीब पर मर गया। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। इसलिए तूने उसी से लेके मौत से दुनिया को मग़फ़िरत से बख्शी। जमात दुखने हो जाए। याद करो कि यीशु 3 घंटे सलीब पर जान करने की हालत में रहा और दर्द उसे खा गया। तब उसने सर झुकाकर जान दी। ऐ खुदावन यीशु तू हमको हमेशा की मौत से बचाने के लिए मर गया। हम अपने बड़े गुनाहों के सबब से दोज़ख के सज़ावार हो गए हैं, लेकिन तेरी मौत हमारी उम्मीद है। हम पर रहम कर और अपनी मौत की खातिर ये अनायत करके हम गुनाहों से खौफ खाएं और तेरी मोहब्बत में कायम रहकर आखिरकार एक रोज़ अपनी जान तेरे हाथों में सौंपें। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ आज के लिए और इस काम में हमारे कर्म बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। इस्लाम मरियम खुद फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप बेटे रूह कुदस का हो हम पर रहम करे खुदावन। ज़ैतून के बाग में पूरा यूं हुआ, अंबिया ने जो किताबें पाक में लिखा, अंबिया ने जो किताबें पाक में लिखा। मकाम 13 यीशु सलीब पर से उतारा गया। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। इसलिए तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को मग़फ़िरत से बख्शी। ख्याल करो कि जब यीशु मर गया तो उसके शागिर्दों में से 2 यानी यूसुफ और निकोदेमुस ने उसको सलीब पर से उतारा और उसकी प्यारी माँ की गोद में रखा। ऐ गमज़दा माँ, हमारे गुनाहों ने तेरे बेटे को मार डाला। आज हम वादा करते हैं कि फिर कभी ना तेरे बेटे को और ना तुझको नाराज़ करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ आज के लिए और इस काम में हमारे कर्म बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। इस्लाम मरियम खुद फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। अहम का समय खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप बेटे रूह कुदस का हो जैसे खुदा में हमेशा हम पर रहम करे खुदा। हम पर रहम करे खुदा। ज़ैतून के बाग से यीशु तब चला, जान देने मेरे लिए तैयार हो गया, जान देने मेरे लिए तैयार हो गया। मकाम 14
ख्याल करो कि कैसे गम और अफसोस से वो दो शागिर्द यीशु की लाश को कब्र में रखते हैं। ऐ हमारे बहुत प्यारे यीशु, कितनी दफ़ा हमारा दिल बड़े गुनाहों की कब्र में दफन किया गया और शायद वो आज तक गुनाह की कब्र ही में पड़ा हुआ है। रहम कर ऐ खुदावन, और जिस तरह तुम तीसरे दिन कब्र में जिंदा होकर उठा, उसी तरह हमारे दिलों को भी आजमाइश और गुनाह के खतरों से छुड़ा। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ, हम से दुआ कर और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप बेटे कुदस का हो, जैसा कि हम पर रहम करें। हम पर रहम करें। ज़ैतून के वादा नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर फरमाया है कि हम तुझे हर जगह, हर माहौल में और हमेशा ढूंढ सकते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह के सलीबी दुखों पर ईमान हमें अपने दुखों और मुश्किलात के लिए जिम्मेदार ठहराता है। अता कर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के सलीबी मकामात से मायूस ना हो, हमारे दिलों को खुदा की निजात बख्श नेमतें हासिल करने के लिए खोल। ए यीशु, अपने जिस्म से बहने वाले खून और पानी से हमें पीने को दे, ताकि हमारे बदनों और ख्यालों से दूसरों के लिए फजल और खुशी के चश्मे बह सकें। आमीन। मेहरबानी से हमारे दिलों में अपना फजल डाल दे और हम इंसानी ज़्यादतियों से दूर रहकर तेरी हिदायत से आसमानी तलकीन की पाबंद रहें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से जो तेरे साथ रुल्कुदस की वादानियत में खुदा और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हम अपने हाथों की मखलूक़ात से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो। पहली तिलावत होसिया नबी की किताब 4वें बाब की 2 आयत से 10वीं आयत तक। खुदावंद यूँ फरमाता है, ऐ इस्राएल, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू लाओ, क्योंकि तेरी बदकिरदारी तेरे गिरने के सबब है। इन बातों को कबूल करो और खुदावंद की तरफ रजू लाओ और उससे कहो कि हमारी तमाम खताकारी को दूर कर और नेकोकारी को कबूल कर। तब हम अपने लबों से कुर्बानियाँ गुजरानेंगे, अशूर हमें रिहाई ना देगा। हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, हम अपने हाथों की मसनूआत से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो, क्योंकि यतीम तुझ ही से रहम पाता है। मैं उनकी बरगिश्तगी का इलाज करूँगा, मैं कुशादा दिली से उनको प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है और मैं इस्राएल के लिए
की मानित हूँ। वो सोसन की तरह फूलेगा और देवदार की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसकी कौंपलें फूटेगी, उसमें जैतून के दरख्त की सी खूबसूरती और लुबनान की सी खुशबू होगी। तब लोग दोबारा उसके ज़ेर साया रहेंगे और गेहूं की मानंद तरोताज़ा होंगे और तार की तरह फूलेंगे और उनकी शोहरत लुबनान की महकी सी होगी। इफ्राइम को तो यूं से पुतों से क्या काम होगा, मैं उसकी सुनूंगा और उस पर निगाह करूंगा। मैं उसके लिए सरसब्ज़ सरों की मानिंद हूँगा, तो वो मुझसे बरोमंद होगा। जो दानिशमंद है वो उन बातों को समझ लें, साहिब फहम उनको जान लें, यानी कि खुदावंद की राहें रास्त हैं। रास्तबाज उनमें चलेंगे, बरकताकार उनमें गिर पड़ेंगे। बाकी आपके पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज का जमायती जवाब है, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। ऐ खुदावंद ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। मैंने एक ऐसी आवाज़ सुनी जिससे मैं वाकिफ ना था। मैंने उसके कंधे से बोझ हटा दिया, उसके हाथ टोकरी से छूट गए। मुसीबत के वक्त तूने पुकारा तो मैंने खलासी दी। जमायती जवाब, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। मैंने गरजते बादल में से तुझे जवाब दिया, मैंने तुझे मरीबा के चश्मे पर आजमाया। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं तुझे नसीहत करूँगा। ऐ इस्राएल, काश तू मेरी सुने। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद तेरा खुदा, ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। तेरे यहाँ दूसरा माबूद ना होगा, तू किसी अजनबी माबूद की प्रस्तिश ना करेगा। मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। जमायती जवाब, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। काश मेरी उम्मत मेरी सुनती और इस्राएल मेरी राहों पर चलता, तो मैं ऐसे गेहूं का मैदा खिलाता और चट्टान के शहद से उसे सेव करता। जमायती जवाब, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। सुन इस्राएल के खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद, बस
بادشاہی سے دور رہے اور بعد اس کے کسی نے اسے جرأت نہ کی کہ کوئی سوال کرے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کیجیے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم سب جمعے کی عبادت میں موجود ہیں اور آج کا کلام، آج کی انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے خداوند سے پیار کرنا چاہیے۔ عبادت سے پہلے ہم نے 14 مقام کی عبادت کی ہے۔ محبت کی ایک نشانی یا محبت کا ایک نشان 14 مقام ہے۔ 14 مقام وہ صلیبی راستے ہیں جس کے ذریعے سے خدا نے اپنی محبت جو ہے وہ ہم پہ ظاہر کی۔ خوشی، شادمانی، مسرت، اچھے لمحات، اچھی صورتحال، ان ساری چیزوں میں ہر شخص خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایسے ہر شخص جو ہے جب خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ خدایا تیرا شکر، لیکن اذیت میں، پریشانی میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اے خدایا تیرا شکر۔ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر ان 14 صلیبی مقامات کو دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح نے مسلسل ہر مقام پہ جو ہے وہ خدا سے رد نہیں ہوا، بلکہ مسلسل خدا کو یاد کرتا رہا، اس کو یاد کرتا رہا ہے اور مسلسل جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے وہ دعا کرتا رہا۔ آپ کو یاد ہے کہ صلیبی مقامات میں ایک مقام آتا ہے جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو 3 عورتیں ملتی ہیں جو رو رہی ہوتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھ پہ مت رو، کیونکہ اگر ہر درخت کے ساتھ ایسا کیا جائے گا تو سوکھے کے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی کہ 14 مقام کے اندر بھی خداوند یسوع مسیح مسلسل انجیل کی منادی کرتا ہے، مسلسل۔ تو آج میرے عزیز بھائیو، آج سوال ہے مجھ سے اور ہم سب سے سوال ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کیا جب مشکل پریشانیاں آتی ہیں تب بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، یا پھر تب جو ہے ڈگمگا جاتے ہیں؟ تو آج کی یہ عبادت ہمیں اس موضوع پر غور کرنے کے لیے ہمیں ہمارا دھیان جو ہے وہ اس طرف لے کر آتی ہے کہ خدا کو پیار کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم خدا کو ہمیشہ ہر موقع پر، ہر صورتحال میں یاد کریں، تاکہ اس کے پیار کے وسیلے سے نہ صرف ہم اپنے خاندانوں کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی مسیح کے قریب لانے والے بنے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آئے لوگ تھوڑا جواب دیتے جائیں، خدا ان کے حضور پیش کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں پاک مقدس سے کہ پاپا ایسا فرانسس اور جو کورس بشپ رہنے کے لیے معاملائیں اس سلسلے میں بشار رکھیں، خدا انہیں خدمت عائد کرے تاکہ وہ سچے دل سے جی مرادی کرے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں پوری دنیا کے امن کے خاص ملک پاکستان کے خدا ان اس حکمرانوں کو اپنا بنائی عطا کرے تاکہ وہ سارے فیصلے راستوں پر کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں حاضر جوائب کے لیے کہ خدا ہم سب کو ایمان عنایت کرے تاکہ ہم پورے ایمان اور حقیقت کے ساتھ روزوں کی تیاری کرتے ہوئے اس کی خوشیوں میں قابل ہوں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ان کا نام تمام شفقت سے چشم جوانی کی سکینت و استقرار کے ساتھ مانگی اور جو ہمارے دلوں میں تم قبول فرما اور بخش دے کہ اس کا سر ہم سب تک پہنچے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین۔ Thank you.
खुदा हमारे खुदा तुमसे मिन्नत करते हैं मेहरबानी से इन हदियों पर निगाह कर जो हम तेरे लिए वक्फ करते हैं ताकि तुझे पसंद आए और हमारी निजात के लिए मुफीद हो मसीह हमारे खुदा के वसीले से खुदा आपके साथ हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं हम खुदा का शुक्र अदा करें ये वाकवाज को नहायत मुनासिब है उस बात के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें तू चाहता है कि हम परहेजगारी के अमल से भी अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करें ताकि इससे हम गुनाहगारों का गरूर कुछ कम हो और मोहताजों का ख्याल रखते हुए हम तेरे रहम करम को अपनाएं इसलिए हम फरिश्तों के बेशुमार गुणों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं आसमान और जमीन के खिलाफ से मांगो है आपके वाला पर रोशना मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है आमीन वाला पर रोशना ऐ मेहरबान बाप खुदा की खदूस से तो पाक कर हर बातचीत तुझी से आती है हमारे और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि नसरानी पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून उसने जो बुझाने के लिए तैयार होकर अपने आप खाने के मौके पर रोटी ली तो उसने शुक्र किया रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और आए और यह मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा मेरी याद में यही किया हमारे इमाम का हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं हम तेरी क़यामत का इक़रार करते हैं जब तक कि तू ना आए बस जवाब हम तेरे बेटे के मरने और चीरने को याद करते हैं हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तो हमें इसका समझा के तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें हमारे इसी के साथ इंतजार करते हैं बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर उनको उसकी तासीस से आपस में एक करें ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर साथ हमारे खाली बाप फ्रांसिस हमारे बिशप भाई ट्रावल्स और अपने सब खालियों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा हमारे उन भाइयों बहनों पर भी नजर कर जो जीवन की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं इस तमाम लोगों को याद कर उनको अपनी रोशनी कबूल फरमा हम तुझसे मिलत करते हैं हम सब पर रहने करते ताकि हम खुदा की मुबारक माँ तुम्हारी मरियम मुबारक यूसुफ मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो चाहते तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें उसी के जरिए उसी के साथ और उसी कुछ कामते खुदाबाप को उनको उसकी वादा काम से तो तासीम शायद हमेशा से हमेशा तक आए हम अपने निजात दहिंदा से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाई है ऐ हमारे बाप जो आसमान में है करते हैं हमें समझियों से बचा इन दिनों में इस्लाम की वर्षा के शक्र की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहने खुदा यीशु मसीह को अपने रसूल कर मैं तुम्हारे पास इस्लाम को छोड़े जाता हूँ मैं अपनी इस्लाम को तुम्हें देता हूँ हमारे गुनाहों पर नहीं करके अपनी से ईमान पर नजर कर और उसको इस्लाम के इत्तेहाद बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है खुदा की इस्लाम की हर वक्त आपके साथ आए हमें दूसरी इस्लाम की चाह ऐ खुदा को कर रहे तुझ जान गुनाह को मिला जैसे हम पर रहम कर ऐ खुदा के कर रहे तुझ जान गुनाह को मिला जैसे हम पर रहम कर ऐ खुदा के कर रहे तुझ जान गुनाह को मिला जैसे हम इस्लाम की अजीज़ों ये है खुदा का बर्रा जो जान गुनाह को उठा ले जाता है मुबारक है हम सब जिस तरह की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं ऐ खुदा हमें इस्लाम की सिर्फ तेरे
ایک ضروری اعلان 15 مارچ کو اعظم بستی میں اے خدا ہمارے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں بخش دے کہ ہمارے دماغ اور جسم پر تیری قدرت پورا اثر کرے تاکہ جو کچھ ہم نے اس پاک عبادت میں شریک ہو کر پایا وہ نجات کے دن ہمیں مکمل طور پر ملے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے خداوند آپ کے ساتھ اور پاک رحمت خدا باپ اور بیٹے اور اس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے ہماری بات ہو چکی